So let h be the distance perpendicular distance from P to the inclined face. If the tetrahedron is isolated from the body and a free body diagram is drawn, then it will be in equilibrium under the action of surface forces. The free body diagram is shown in the figure. The diagram is shown in figure here. This is the part which is taken out from tetrahedron free body. So since the size of the tetrahedron that we consider is very small, since this tetrahedron is small, so in the limit, when we apply in the limit is and in the limit h tend to 0, we will have average stresses on the faces. जो भी faces होंगे इसकी, if h tends to 0, h is यहाँ से लेके इस plane तक की distance जो है, and this is small, it means very small है. In h tends to 0, it means the plane is passing through P. ये plane P से pass हो रहा है. So we have the average stresses over the faces, and let Tn be the resultant stress vector on face ABC. ABC पर जो नेट रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो, so this can be resolved into components Tx and Ty and Tz and parallel to
the three axes x, y, and z. Z on the three faces the rectangular stress components are ना वो जो तीन हमारे प्लेन्स थे ये प्लेन ये प्लेन और ये प्लेन इन प्लेन्स पर स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे so that stress components are sigma x tau xy tau xz sigma y tau yx tau yz sigma z tau zx tau zy and tau zy ठीक है ये स्ट्रेस परपेंडिकुलर इन प्लेन्स पर एक्ट कर रही नाउ if a is the area of the inclined face the inclined face का एरिया a है then we have area of plane BPC area of plane BPC इसका एरिया क्या होगा so that is equal to projection of area ABC on the YZ plane so इस एरिया को यदि हम यहाँ प्रोजेक्ट कर दें यहाँ पर दिस इज y and this is z plane ये वाला plane so we'll have the area of BPC so that is equal to a nx similarly area of CPA plane CPA इसका एरिया so that is equal to projection of area ABC on कौन सा प्लेन हुआ है XZ प्लेन या प्लेन Y XZ plane and that is equal to a n y that is equal to a n y next area of कौन सा प्लेन बच गया एरिया ऑफ प्लेन ये हो गया अब ये बचा APB APB that is equal to projection of area ABC on the XY plane that is equal to A times NZ and let no,
since it is in equilibrium, so for equilibrium of the tetrahedron, the sum of the forces in x, y, and z directions must individually vanish. That is sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0, and sigma fz equal to 0. Sum of all the forces in x direction 0 होना चाहिए, sum of all the forces y direction 0, and sum of all the forces in z direction 0. So thus for equilibrium in x direction, x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए क्या रहेगा, ये रहा हमारा, यहाँ पे देखें क्या क्या, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज टाउ एक्स वाई, दिस इज टाउ एक्स जेड इस प्लेन पर, और इस प्लेन पर दिस इज सिग्मा वाई, this is tau yx, and this is tau yz, और इस प्लेन पर this is sigma z, this is tau zy, this is tau zx. तो क्या करना है, फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, फोर्स फोर्स है ये, दिस आर द स्ट्रेसेस, सो और कहाँ गया, इस प्लेन पर हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर की बात की थी, टी विद द रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर ऑन द फेस एबीसी, ठीक है, तो इसके भी तीन कंपोनेंट, वो दिस इज टी एक्स एन, टी वाई एन, और टी जेड एन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हो गया टी एन एक्स इंटू ए एरिया माइनस सिग्मा एक्स इंटू ए एन एक्स, इसके कारण फोर्स एरिया ये रहा, माइनस एक्स डायरेक्शन में टाउ वाई एक्स है और टाउ जेड एक्स है, तो टाउ वाई एक्स स्ट्रेस एरिया से मल्टीप्लाई होगा,
a ny minus tau zx a nz इक्वल टू 0। ये फोर्सेस हैं, 1 2 3 और एक ये। For equilibrium in y direction, y डायरेक्शन में भी टी वाई एन ए माइनस टाउ वाई में देखें टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई ये रहा, टाउ एक्स वाई ये रहा और टाउ जेड वाई ये रहा। टाउ एक्स वाई इंटू ए इंटू एन एक्स माइनस सिग्मा वाई ए इंटू एन वाई माइनस टाउ वाई ना वाई जेड टाउ जेड वाई टाउ जेड वाई टाउ जेड वाई इंटू ए इंटू एन जेड। Similarly in z direction also, tau z n a minus tau z डायरेक्शन कहाँ गई भाई, ये रही, ये देखो एक ये रहा, और एक ये रहा, एक्स जेड वाई जेड और सिग्मा जेड। so tau x z to a into nx minus tau zy yz into a into ny minus sigma y a into nz. This is equal to 0, equal to 0. Now a cancel out, तो हमारी इक्वेशंस होंगी tn x इक्वल टू सिग्मा x, इसको इस तरफ ले जाएं माइनस वाले टर्म्स को, तो दिस विल बिकम सिग्मा x into nx plus tau xy ny plus tau xz nz ty n is equal to tau xy nx plus sigma y ny plus tau yz zy into nz. tz n, this is tau zx nx plus tau zy ny plus sigma z nz. ये बन जाएगी इक्वेशंस। सो द लिमिट की बात करें तो मीन्स दिस इज पासिंग थ्रू h टेंड्स टू 0, तो h 0 की तरफ जाएगा, तो ये प्लेन जो है दिस विल पास थ्रू द पॉइंट P। सो ये जो इक्वेशंस हैं, these equations are known as Cauchy's stress formula, इनको बोलते हैं Cauchy's stress formula, and this equation shows that the 9 rectangular stress components at P, 9 stress components 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stress components at P
will enable us to determine the stress components on an arbitrary plane. Now, tau xy is equal to tau yx, tau xz is equal to tau zx, and tau zy is equal to tau yz. Since and these are the cross shears, so from the equality of the cross shears we can find out this कि दोनों स्ट्रेस जो है ये स्ट्रेस और इसके सामने वाला यहाँ जो प्लेन है उस पे जो स्ट्रेस ये वाला this stress zy xy ना so this is tau xy and this is tau xy. So these are equal and opposite the crosses. Similarly ऐसे ही हमारा so ये हमारे कोचेस स्ट्रेस फार्मूला और ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ एबीसी प्लेन पर, इस एबीसी प्लेन पर यदि इफ हमने कहा था कि Tn इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है ना, इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर ऑन प्लेन एबीसी. और प्लेन एबीसी पर हमने कहा कि चलो एक रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर जो लग रहा है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस उस प्लेन पर जो है वो Tn. तो एंड इफ हमने ये भी कहा कि ये उस कंपोनेंट उस स्ट्रेस रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो है एक्स डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है, वाई में ये और जेड में ये, तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर का. सो दिस इज द इक्वेशन प्लस Tny स्क्वायर प्लस T एंड Z स्क्वायर. ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया. एंड इफ उस प्लेन पर यदि हम बोले कि एक रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर तो Tn है, ठीक है, लेकिन उस प्लेन पर देयर विल बी अ नॉर्मल स्ट्रेस एंड देयर विल बी अ शियर स्ट्रेस. तो उस प्लेन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी और एक शियर स्ट्रेस भी होगी. सो इफ सिग्मा n and tau n are आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? हेलो हेलो तो नहीं, अब मेरी आवाज आ रही? सर आइस इंजन. तो 5 मिनट ज्यादा हो गए, 2 मिनट में हम फिनिश कर रहे हैं. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं? ये अभी तक जितना हमने काम किया जो स्ट्रेसेस निकाली है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर. नो सर. ठीक है. सो मतलब ये प्लेन ये खेदी और इस प्लेन पर कोई स्ट्रेस है, इस प्लेन पे स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो उस स्ट्रेस का एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा जो कि इस प्लेन के नॉर्मल होगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा. ठीक है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस, और नॉर्मल को सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस. तो सिग्मा एन एंड टी एन आर द नॉर्मल एंड shear stress components. Then we have
Tn square is equal to सिग्मा n का स्क्वायर टाउ n का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। तो ये नॉर्मल उस स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट हो गया और ये shear कंपोनेंट हो गया। So since this is the normal stress is equal to the projection of Tn along the normal, it is also equal to the sum of the projection of its components Txn, Tyn and Tzn along n. Since the normal, क्लास कौन लेगा नेक्स्ट वाले? शरद सर। शरद सर, मैं कोड भेज दिया। अभी नहीं भेजा था। अभी नहीं भेजा, ठीक है। So since the normal stress is equal to the projection of Tn along the normal, it is also equal to the sum of the projections of its components Txn, Tyn and Tzn along n. Hence, तो ये जो उस स्ट्रेस जो कि उस प्लेन एबीसी पर थी, ये उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये वाई का है और ये जेड का है। तो यदि हम इन कंपोनेंट्स का वो जो प्लेन के नॉर्मल, ये प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल ये रहा, तो हम वो जो टी एक्स, टी वाई और टी जेड इसके कंपोनेंट लें इस नॉर्मल के प्लेन और उनको जोड़ें, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस जो सिग्मा एन है उसके बराबर होगा। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू एन एक्स टी एक्स एन प्लस एन वाई टी वाई एन प्लस एन जेड टी जेड एन होगा। मतलब इनका टी एक्स टी वाई टी जेड का नॉर्मल के डायरेक्शन में तो प्रोजेक्शन, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर है। और हमारी कोचेज इक्वेशन क्या थी? तो टी एक्स एन की वैल्यू है हमारे पास इतना, टी वाई की है, टी जेड एन की भी है। तो हम यहां से ये इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू एन एक्स इंटू सिग्मा एक्स एन एक्स प्लस टाउ एक्स वाई एन जेड प्लस टाउ एक्स जेड एन जेड प्लस एन वाई ब्रैकेट टी वाई एन की वैल्यू टाउ एक्स वाई एन एक्स प्लस सिग्मा वाई एन वाई प्लस टाउ वाई जेड एन जेड प्लस एन जेड इंटू टी जेड एन। So that is tau xz और zx की nx
प्लस टाउ जेड वाई, वाई जेड और एन वाई प्लस सिग्मा जेड एन जेड, ये वैल्यूज रख दी और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस यहाँ पर ये एन वाई इंटू सिग्मा वाई प्लस एन वाई स्क्वायर सिग्मा वाई। सिमिलरली यहाँ से देखें सिग्मा जेड एन जेड, तो एन जेड स्क्वायर सिग्मा जेड, ये तो कोई नॉर्मल प्लस शेयर स्ट्रेस, ये एक्स एन एक्स वाई आएगा एन एक्स, ये एन वाई टाउ एक्स वाई और ये रहा एन वाई, ये एन एक्स, तो ये आएगा प्लस 2 एन एक्स एन वाई टाउ एक्स वाई प्लस 2 एन वाई एन जेड टाउ वाई जेड प्लस 2 एन एक्स एन जेड और एन एक्स and to tau zx xz, this is sigma n, ये हमारी इक्वेशन। ये नॉर्मल, उस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी वो ये होगी। शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, टाउ एन, जो नॉर्मल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर शेयर स्ट्रेस। सो टाउ एन इज इक्वल टू, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, ये रही इक्वेशन, ये टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है। तो यदि ये इफ दिस इज नोन, this is known from here, so we can find out this shear component, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यूज करके, ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन को यूज करके, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को यूज करके हम शेयर स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों से, तो यहां से आ जाएगी कि टाउ एन स्क्वायर इज इक्वल टू टी एन का स्क्वायर माइनस सिग्मा एन स्क्वायर इक्वेशन, क्योंकि किसी प्लेन पर रिजल्टेंट स्ट्रेस मालूम है, नॉर्मल स्ट्रेस मालूम है, तो शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी। सो कुछ प्रॉब्लम्स इस पे करेंगे। प्रॉब्लम इज, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम प्रॉब्लम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दिस वाज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर। So this is the normal stress on arbitrary plane. This is the tangential or the shear stress on the on any arbitrary plane. ठीक है, आप लोगों ने चेक बॉक्स में अपने नाम लिख दिए थे? यस सर। हाँ सर। हाँ सर।
चलो जिसने नहीं लिखा वो लिख दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पे कुछ और देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। शरद सर का लिंक आ गया क्या? नो सर। नहीं आया तो मैं प्रॉब्लम लिखवा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो एक बार और पढ़ ओके लेना सर। आप लोग, गो थ्रू द पिछली क्लास में जो हुआ था उसको एक बार और पढ़ना, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यस सर। यस ओके, सर। बाय। थैंक Thank यू you, सर। sir. Control C.